Hello friends, welcome to our channel. Today we are going to discuss question number 2 of practice set 1.1 from chapter number 1 linear equations in two variables. And don't skip the video, please watch it very carefully, because in this video we are going to discuss question number 2, first 4 questions from question number 2. So please watch carefully, and if you have any doubt about those questions, you can WhatsApp me on this number. So let's start our video. As I told, today we are going to discuss chapter linear equations in two variables, practice set 1.1, question number 2, and from this question we are going to discuss first 4 questions. In a previous video we have discussed question number 1. So let's start question number 2. So question number 2 is solve the following simultaneous equations. Let's see first question. The first question is 3a plus 5b is equal to 26. A plus 5b is equal to 22. From this question, we will consider that 3a plus 5b is equal to 26 is question number 1, and a plus 5b is equal to 22 is equation number 2. So we have already learned that one of the term has to be equal in these two equations. इन दो इक्वेशंस में जो दो टर्म्स दी हुई होती है उनमें से एक टर्म इक्वल होनी चाहिए. द कोएफिशिएंट ऑफ एनी वन वेरिएबल हैज़ टू बी इक्वल. कौन से भी एक वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट है वो सेम होना चाहिए. वो हमने पिछले क्वेश्चन में भी पढ़ा था. अब इन दो इक्वेशंस में यदि हम देखते हैं तो पहले इक्वेशन में ए का कोएफिशिएंट 3 है और सेकंड इक्वेशन में ए का कोएफिशिएंट 1 है. तो ए का कोएफिशिएंट तो सेम नहीं है. द कोएफिशिएंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल. व्हेन वी सी द कोएफिशिएंट ऑफ बी इन बोथ इक्वेशंस, देन वी फाइंड दैट द कोएफिशिएंट ऑफ बी इज सेम. बी का कोएफिशिएंट सेम है, और हमें पता है कि जब कोएफिशिएंट सेम होता है तो वो दो टर्म जो होते हैं वो हमें एलिमिनेट करनी होती है, कैंसिल करनी होती है. तो अब ये 5b एलिमिनेट करने के लिए, कैंसिल करने के लिए हमें इन दो इक्वेशंस की सब्सट्रैक्शन करनी पड़ेगी, क्योंकि ये दोनों टर्म पॉजिटिव है. सो वी विल सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 2 and 1. सो सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1. So we are going to subtract this equation number 2 from equation number 1. So 3a plus 5b minus a plus 5b is equal to 22. So we are going to subtract these two equations. So 3a minus a is equal to 2a. 5b will be cancelled to each other because this 5b is negative as we are subtracting these two equations. हम इन दो इक्वेशंस की सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं, इसलिए ये क्या होगा, 5b होगा कैंसल. 26 minus 22 is equal to 4. So here we get 2a is equal to 4 by subtracting these two equations. अब हमें पता है कि 2 और a में कोई भी सिंबल नहीं है, इसका मतलब यहाँ मल्टीप्लिकेशन होता है. और इफ ऑन द लेफ्ट साइड there is a multiplication, it will become dividation to the right side. So a is equal to 4 by 2. So 2 2s are 4, so we get the value of a is 2. So a is equal to 2. Now we are going to find out the value of b. हमें b की वैल्यू पता करनी है. तो अब हम क्या करेंगे, जो a की वैल्यू है कोई भी एक इक्वेशन में हम उसे पुट कर देंगे. सो कौन सा भी जो इजी इक्वेशन आपको लगता है उसमें आप पुट कर सकते हैं. कौन से भी इक्वेशन में आप ए की वैल्यू प्लेस करेंगे तो आपको बी की वैल्यू सेम ही मिलेगी, अलग अलग वैल्यू नहीं मिलेगी. सो Here we are going to place a is equal to 2 in equation number 2.
So our equation number 2 is a plus 5b is equal to 22. a प्लस 5b इज इक्वल टू 22, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। तो अब हम इसमें a की वैल्यू क्या करेंगे, पुट करेंगे। सो 2 प्लस 5b इज इक्वल टू 22। नाउ दिस 2 इज पॉजिटिव हियर, सो इट विल बिकम negative to the right side. So 5b is equal to 22 minus 2. We get the answer 20. 5b is equal to 20. अब यहाँ पर क्या होगा, अगेन दिस 5 is multiplication here, so it will become divide. So b is equal to 20 by 5. So 5 4s are 20. So here we get the value of b is equal to 4. हमें यहाँ पर b की वैल्यू क्या मिलेगी, 4 मिलेगी। So a is equal to 2. Here we got, and here we got b is equal to 4. So the solution of this equation is 2, 4. So write down this equation very carefully. If you have any doubt, you can comment below this video, or you can ask me on WhatsApp. So pause the video and please write the whole equation very carefully. So let's move toward the second question. The second question is x plus 7y is equal to 10, 3x minus 2y is equal to 7. इस क्वेश्चन में x प्लस 7y इज इक्वल टू 10 को हम इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे, और 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7 इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मानेंगे। अब जब हम इन दो इक्वेशंस में देखते हैं, व्हेन वी सी वेरी केयरफुली इन दिस टू इक्वेशंस, नन ऑफ द टर्म इज इक्वल। कोई भी टर्म, x का कोएफिशिएंट भी यहाँ पर सेम नहीं है और y का कोएफिशिएंट भी यहाँ पर सेम नहीं है। सो one of the coefficient has to be same to solve the equation. कौन सी भी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी हम इक्वेशन को सॉल्व कर पाएंगे। अब यहाँ पर क्या है, x का कोएफिशिएंट भी दोनों इक्वेशन में सेम नहीं है और y का कोएफिशिएंट भी दोनों इक्वेशन में सेम नहीं है। तो अब हमें कौन से भी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट इक्वल करना होगा। सो यहाँ पर हम x का कोएफिशिएंट सेम करेंगे क्योंकि वो इजी है, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 1 है। सो सेकंड इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब सेकंड इक्वेशन जैसा है वैसा ही रहेगा। और इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब सिर्फ एक स्टेप यहाँ पर हमें करनी होगी। यदि हमें y को सेम करना पड़ेगा तो हमें यहाँ 2 स्टेप्स करने पड़ेंगे, मतलब इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इक्वेशन 2 को 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जो इजी है वही हम करेंगे। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 3। लेट्स मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 3, देन वी विल गेट x into 3 3x plus 3 7s are 21, y is equal to 10 3s are 30। Here we get इक्वेशन नंबर 3। यहाँ पर हमें इक्वेशन नंबर 3 मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तब हमें इक्वेशन नंबर 3 मिला है, तो अब इक्वेशन नंबर 1 को हम कंसिडर नहीं करेंगे। अब हम देखेंगे इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को। यदि हम इन दोनों इक्वेशंस को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि x का जो कोएफिशिएंट है वो यहाँ पर सेम है। द कोएफिशिएंट ऑफ x इज सेम। सो नाउ लेट्स कैंसल दिस टू टर्म्स। अब इन दो टर्म्स को कैंसिल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, द सब्सट्रैक्शन ऑफ इक्वेशन नंबर 2 and 3। अब सब्सट्रैक्शन ही क्यों करना है, एडिशन क्यों नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर दोनों इक्वेशंस में 3x जो है वो पॉजिटिव है, और पॉजिटिव टर्म यदि हमें कैंसिल करनी है तो हमें उन दो इक्वेशंस का सब्सट्रैक्शन ही करना पड़ेगा। यदि हम दोनों का एडिशन करेंगे तो कैंसिल नहीं होगा, एलिमिनेट नहीं होगा, उल्टा 3x प्लस 3x 6x होगा। सो here we have to subtract these two equations. So let's this is our equation number 2. So subtracting equation number 2 from equation 3, equation 2 को हम क्या करेंगे, equation number 3 से subtract करेंगे। So पहले हम equation number 3 को लिखेंगे 3x plus 21 y is equal to 30। उसके नीचे लिखेंगे equation number 2 को 3x minus 2y is equal to 7। इन दोनों को हम करेंगे subtract। तो इन दोनों को सब्सट्रैक्शन करेंगे तो 3x होगा कैंसल। सो 3x and 3x will be cancelled. Here is a minus symbol because we are going to subtract these two equations. So minus minus
plus. So 21 plus 2 is equal to 23y. Here is a subtraction. So 30 minus 7 is equal to 23. अब हमें पता है कि यहाँ पर 23 मल्टीप्लाई है, इधर आके वो डिवाइड होगा. सो y इज इक्वल टू 23 बाई 23. सो 23 1s are 23. So y is equal to 1. Here we get the value of y is 1. Now this value we are going to put in any one of in any equation. You can place y is equal to 1 in equation number 1 or in 2 or in 3. In any equation you can put the value of y and you will get the same answer, value of x. So now place y is equal to 1 equation number 2. ओके आप 1 में भी प्लेस कर सकते हैं, 1 कंपैरेटिवली ईजी होगा, लेकिन मैं यहाँ पर 2 में प्लेस करके आपको दिखा रहा हूँ. सो लेट्स पुट. सो 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7. y की वैल्यू 1 है. सो यहाँ पर जो 2y है वो होगा 2 इंटू 1. सो 3x माइनस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 7. एज वी नो दैट 2 1s are 2. सो 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 7. अब ये 2 जो है वो लेफ्ट साइड में निगेटिव टर्म है, वो राइट साइड में जाके हो गया पॉजिटिव टर्म. सो 3x इज इक्वल टू 7 प्लस 2 इज इक्वल टू 9. अब ये 3x जो है वहाँ यहाँ पर मल्टीप्लाई है, इधर आके होगा डिवाइड. सो x इज इक्वल टू 9 बाय 3. सो 3 3s are 9. Here we get the value of x which is 3. So the solution of this equation is 3, 1. As we know that we have to write the value of x first and then y. So x की वैल्यू हमें पहले लिखनी है, फिर उसके बाद y की वैल्यू लिखनी है. So the solution of this equation is 3, 1. So write down this whole answer by pausing the video. We will move to question number 3. So let's see the question number 3. Question number 3 क्या है? 2x minus 3y is equal to 9 and 2x minus y is equal to 13. So here we will consider 2x minus 3y is equal to 9 is the first equation and 2x plus y is equal to 13 is second equation. अब इन दो इक्वेशंस को जब हम देखते हैं, when we observe these two equations, then we will find that the coefficient of x is same. x का कोएफिशिएंट सेम है और हमें पता है कि जब कोई भी वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम होता है तो हमें उस टर्म को कैंसिल करना होता है और उस टर्म को कैंसिल करने के लिए इन दो इक्वेशंस की आपको एडिशन करनी होगी या सब्सट्रैक्शन करनी होगी. और वो किस पे डिपेंड होगा? द सिंबल ऑफ द टर्म. जो वेरिएबल होगा उसका जो सिंबल होगा उस पर यह डिपेंड होगा कि इन दो इक्वेशंस की एडिशन करनी है या सब्सट्रैक्शन करनी है. ऐसा नहीं कि सभी इक्वेशन की एडिशन करनी है या सभी इक्वेशन की सब्सट्रैक्शन करनी है. इट इज टोटली डिपेंड ऑन द सिंबल ऑफ द वेरिएबल. अब यहां पर जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि बोथ द टर्म्स आर पॉजिटिव. दोनों टर्म पॉजिटिव है और पॉजिटिव टर्म को कैंसिल करने के लिए हमें उन दो इक्वेशंस की क्या करनी होगी? सब्सट्रैक्शन करनी होगी. सो लेट्स सब्सट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1. देन व्हाट विल वी गेट? 2x minus 3y is equal to 9 minus 2x plus y is equal to 13. We are going to subtract these two equations, then we will these two term will be cancel क्योंकि एक पॉजिटिव होगी और एक निगेटिव होगी. अब ये माइनस और ये यहाँ पर आप सब्सट्रैक्शन करने वाले हैं, इसलिए ये भी क्या होगी? माइनस ही होगी. सो हियर आल्सो वी आर गोइंग टू सब्सट्रैक्ट. सॉरी, तो हम इसको करेंगे सब्सट्रैक्ट. सो माइनस माइनस होगा प्लस. यहाँ पर भी हम इसको करेंगे सब्सट्रैक्शन. सो माइनस प्लस minus and the symbol of greater number. So here we will get तो यहाँ पर हमें मिलेगा माइनस प्लस माइनस. सो माइनस 4y एंड माइनस प्लस माइनस सिंबल ऑफ ग्रेटर नंबर -4. अब ये -4 और y यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो यहाँ पर आके ये डिवाइड होगा राइट साइड में आके. सो y इज इक्वल टू -4 बाय
-4, सो माइनस माइनस प्लस इन डिवाइडेशन, डिवाइडेशन में माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, सो y की वैल्यू हमें 1 मिलेगी, द वैल्यू ऑफ y इज 1। अब ये जो y की वैल्यू हमें मिली है वो हमें इन दो इक्वेशंस में से एक इक्वेशन में हमें इसको पुट करना है। सो लेट प्लेस y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 में हमें इसको प्लेस करना है। सो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 13, यह हमारा इक्वेशन नंबर 2 है, y की वैल्यू 1 है, सो 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 13। ये प्लस 1 जो लेफ्ट साइड में प्लस है वो राइट साइड में आके होगा -1, सो 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 1, सो 2x इज इक्वल टू 12। अब ये 2 जो मल्टीप्लाई है वो राइट साइड में आके होगा डिवाइड, सो x इज इक्वल टू 12 बाई 2, सो 2 6 12, so the value of x is equal to 6. So the solution of this equation will be 6, 1. So write down whole answer very carefully. We will move to the fourth question. So let's see the question number 4. Question number 4 है 5m minus 3n is equal to 19 and m minus 6n is equal to negative 7 minus 7. So here we will consider that 5m minus 3n is equal to 19 is the equation number 1 and m minus 6n is equal to minus 7 is equation number 2. When we see these two equations, none of the coefficient of variable is equal. किसी भी वेरिएबल का कोएफिशिएंट इक्वल नहीं है, सो हमें किसी एक का कोएफिशिएंट इक्वल करना होगा। अब यहाँ पर यदि हमें m का कोएफिशिएंट इक्वल करना है तो हमें यहाँ पर सिर्फ 5 से यदि इक्वेशन नंबर 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो m का कोएफिशिएंट इक्वल हो जाएगा। और यदि n का सेम करना ये भी इजी है, 3 2 6, इसका मतलब यदि 2 से हम इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करते तो n का भी हो जाएगा। पर अब यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे हमें m का कोएफिशिएंट इक्वल मिलेगा। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 बाय 5, सो 5 इंटू m 5m माइनस 6 5 30n इज इक्वल टू 7 5 35, सो नेगेटिव 35। सो हेयर वी गेट द इक्वेशन नंबर 3, 5m माइनस 30n इज इक्वल टू माइनस 35। इक्वेशन नंबर 2 को 5 से जब हमने मल्टीप्लाई किया तब हमें इक्वेशन नंबर 3 मिला है। तो अब हम देखेंगे इक्वेशन नंबर 1 और 3 को, और जब हम इक्वेशन नंबर 1 और 3 को देखते हैं तो हमने यहाँ पर क्या किया है, m का कोएफिशिएंट यहाँ पर हमने इक्वल किया है। सो अब हमें पता है कि कोएफिशिएंट इक्वल क्यों करते हैं, क्योंकि हमें वो टर्म एलिमिनेट करनी होती है। अब टर्म एलिमिनेट करने के लिए हमें इक्वेशन 1 और 3 का एडिशन करना होगा या सब्सट्रैक्शन करना होगा। ये किस पर डिपेंड है, राइट, सिंबल पे। तो दोनों टर्म यहाँ पर पॉजिटिव है और पॉजिटिव टर्म यदि हमें कैंसिल करनी होती है तो हमें उन दो इक्वेशंस की सब्सट्रैक्शन करनी होगी। सो सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 3 को पहले लिखेंगे 5m माइनस 30n इज इक्वल टू माइनस 35। इसके नीचे हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 को 5m माइनस 3n इज इक्वल टू 19। इन दोनों को हम करेंगे सब्सट्रैक्ट। सो प्लस माइनस एक क्या होगा, कैंसिल होगा, यहाँ ये माइनस आता है, सो माइनस माइनस प्लस होगा, ये माइनस माइनस ही रहेगा। सो 5m विल बी कैंसल टू ईच अदर, माइनस माइनस प्लस, सो नेगेटिव 30 प्लस 3 विल बी नेगेटिव 27n, माइनस माइनस प्लस, सो 35 नेगेटिव 35 negative 19, the answer will be negative 54। ये नेगेटिव 27 और n में यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है, इसलिए ये राइट साइड पे आके होगा डिवाइड। सो n इज इक्वल टू नेगेटिव 54 डिवाइडेड बाय नेगेटिव 27। सो 27 2 ज़ा 54 माइनस माइनस प्लस, सो n इज इक्वल टू 2। हियर वी गेट द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 2। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 2 या 3 किसी में भी प्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम प्लेस करेंगे n इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में हम इसको पुट करने जा रहे हैं। सो इक्वेशन नंबर 2 है हमारा m इज इक्वल टू
-6n इज इक्वल टू -7। यहाँ पर हम n की वैल्यू पुट करेंगे, सो m-6 इंटू 2 इज इक्वल टू -7। सो 6 2 ज़ा 12, सो m-12 इज इक्वल टू -7। ये -12 जो लेफ्ट साइड में निगेटिव है, राइट साइड में आके होगा पॉजिटिव। सो m इज इक्वल टू -7 प्लस 12, माइनस प्लस माइनस, द आंसर विल गेट द symbol of greater number. So m is equal to positive 5, and here we get the answer m comma n is equal to 5 comma 2. This is the solution of the equation. So pause the video and write down. If you have any doubt about any equation, any question, you can WhatsApp me or ask me in the comment section, and don't forget to subscribe the channel and please hit the bell icon. So we will meet in one more exciting video. So goodbye, Jai Hind.